This is Pastor John Dignas from Apple Valley, Minnesota, and I'll be preaching the message in English, and Pastor Persis Hanna of India will be translating the message into Hindi. और सभी को जय मसीह की। इस सुबह में मैं पास्टर जॉन विगिंस अमेरिका से, और मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे पास्टर पर्सिस इंडिया से। The title of the message is The Door Was Shut. The door was shut. Jesus is the door. The cross is the door. Jesus and what he did on the cross is the door. और आज का जो वचन का शीर्षक है वो है जो द्वार था वो बंद था, जो द्वार जो था वो बंद था, और यीशु मसीह अब द्वार है। जो क्रूस पर उसने किया वो द्वार है, जो क्रूस पर उसने अपने जीवन की कुर्बानी हमारे लिए दी है, वो हमारे लिए एक द्वार हुआ। In John 10:9 it says, I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved. The door is now open. It's open for your salvation, but the door will not be open forever. At your death, the door will be closed forever. You cannot get saved after you die. At the second coming of Christ, the door will be closed forever. The second coming of Christ is near. You must not delay. You must get saved now. और आज का जो हमारा वचन के लिए हम जाएंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 10वां अध्याय का 9वां वचन। आप सब, और हमने इसको कई बार पढ़ा है और इसको हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 9वां वचन इस प्रकार से कहता है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। तो मैं आपको बताना मांगता हूँ कि अभी जो है द्वार खुला हुआ है, और ये एक समय आएगा जब ये द्वार बंद हो जाएगा, और उसके बाद आपके मरने के बाद आप बचाए नहीं जा सकते। प्रभु का जो दूसरा आगमन है, उस समय पे ये द्वार पूर्ण रूप से हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, और प्रभु का आगमन बिल्कुल निकट है, बिल्कुल करीब है। आपको देरी नहीं करना है, आपको बचाना है खुद के प्राणों को, आपको देखना है परमेश्वर की ओर। The words, the door was shut, come from verse 10 in the parable of the 10 virgins. We find this in Matthew chapter 25 and verses 1 through 13. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went in to meet the bridegroom. And 5 of them were wise, and 5 were foolish. They who were foolish took their lamps and took no oil with them, but the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, they slumbered and slept. And at midnight there came a cry, Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, Give us your oil, for our lamps have gone out. But the wise answered, saying, Not so, lest there not be enough for us and you, but go you rather to them who sell and buy for yourselves. And while they went to buy, the bridegroom came, and they who were ready went in to him to the marriage, and the door was shut, and the door was shut, and the door was shut. Let that get in your spirit. The door was shut. The door was shut. The door will not always be open. Afterwards came also other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. And he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour when the Son of Man cometh. और ये जो द्वार बंद एक शब्द है वो कहाँ से आया है, आइए उसके लिए हम जाएंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय का 1 से लेके 13 तक हम पढ़ेंगे। हम इसको पढ़ते हैं साथ में। जब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशाल तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देरी हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुमारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदार से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं।
परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी, तो दूल्हा आ पहुंचा और तैयार थी, वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुँवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को। हालेलुया। The bridegroom is Jesus. The 10 virgins are all born again. At the beginning, all 10 virgins had oil. Oil refers to the Holy Spirit. You cannot have the oil of the Holy Spirit without being born again. Virgin points to purity before the Lord. The 5 wise virgins are those who consecrated and dedicated themselves to the Lord. They ran the race. They were faithful to the end. They kept their faith in Jesus and what he did at the cross. The 5 foolish virgins were those who lived a careless Christian life. It cost them. The door was shut and they died lost. और जो ये हम देखते हैं यहाँ पर, जो दूल्हा था वो था यीशु मसीह को दिखाता है यहाँ पर। 10 जो कुंवारियां थी वो सब प्रभु में हम सबको विश्वासियों को दिखाते हैं। और हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर शुरुआत में सबके पास तेल था, और तेल जो दिखाता है वो पवित्र आत्मा को दिखाता है। और यदि आपके पास वो पवित्र आत्मा का वो तेल नहीं है, और वो नहीं हो सकता यदि आप प्रभु में बचाए हुए नहीं गए हैं। और यहाँ पर कुंवारी जो दिखाते हैं वो परमेश्वर के सामने पवित्रताई को दिखाती है। उसके बाद उसमें से 5 जो समझदार जो कुंवारी थी वो दिखाती हैं, जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लिए रख छोड़ा, परमेश्वर के सामने परमेश्वर को खुद को समर्पित किया, और वो इस दौड़ में अंत तक बिल्कुल परमेश्वर के साथ जुटी रही। उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास रखा, अपने जीवन को अच्छे तरह से व्यतीत किया और यीशु मसीह की ओर देख के चले। बाकी 5 जो मूर्ख जो कुंवारी थी वो दिखाती हैं कुछ मसीह लोगों के बारे में, जो बिल्कुल ही बिना सोचे समझे मसीह जीवन को जीते हैं। कोई परवाह नहीं है, किसी भी तरीके से मसीह जीवन को जीते हैं, और इसके लिए उनको एक कीमत चुकानी पड़ी कि द्वार बंद हो गया और वो हो गए। The parable of the 10 virgins is really a message to the church. It is a message to every believer. It is a warning that we cannot live a sloppy Christian life. We cannot call ourselves Christians and continue to live in sin. Such carelessness can cost you your soul. Someday the door will be shut. And if you're not ready, you will lose your soul and you'll go to hell. और जो ये 10 कुंवारियों का जो हमारा दृष्टांत है वो हमें जो बताता है, असल में वो कलीसियाओं के बारे में बताता है, वो विश्वासियों के बारे में बताता है, और एक चेतावनी है कि यदि हमने नामधारी मसीह होकर जीवन जीना नहीं छोड़ा, तो हमारे लिए एक कष्ट आगे है, हमारे लिए एक मुसीबत आगे है। हम अपने आप को मसीह बोलकर पाप में नहीं जी सकते। तो कई बार ये जो हमारा बिना सोचे समझे जीने वाला जो व्यवहार है वो हमारे आत्मा को, प्राण को नष्ट कर सकता है, और एक दिन हमारे लिए भी वो द्वार बंद हो सकता है। और यदि आप तैयार नहीं है अपने प्राणों को खोने के लिए, हालेलुया, यदि आप तैयार नहीं तो परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर की ओर फिरें, और अदर नहीं तो आपको एक और रास्ता है नर्क का, वहां जाना पड़ेगा। Some teach that the 5 virgins were not saved. I do not believe this is true because the foolish virgins had some oil, the oil of the Holy Spirit, which you can't have unless you're saved. The consequences of the unsaved will be the same as the foolish virgins. They will die and lose their souls. और कुछ लोग बोलते हैं ये जो 5 मूर्ख कुंवारी थे वो बचाए नहीं गए थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि वहां पर इस प्रकार से लिखा उनके पास तेल था, और तेल पवित्र आत्मा को दिखाता है, और पवित्र आत्मा को आप तब तक नहीं पा सकते जब तक आप बचाए गए नहीं हैं। और ना बचाए जाने का जो कारण है, जो ना बचने पर क्या होता है कि हम उन मूर्ख कुंवारियों की तरह हो जाते हैं। आखिर में हम
खो जाएंगे और आखिर में हमें अनंत काल का मृत्यु मिलेगा। This parable teaches us that some people will be ready and others won't when they die or at the second coming of Christ. Jesus spoke this parable just a few days before his death on the cross. It was spoken in view of Gethsemane and Calvary. It was spoken in the view of the cross and the grave. So, what Jesus spoke here is very serious. The Holy Spirit is saying, listen up, hear what Jesus is saying. और ये जो दृष्टांत है ये हमको सिखाता है कि कुछ लोग तो तैयार हैं या तैयार हो रहे हैं प्रभु के उस दूसरे आगमन की ओर जाने के लिए, परंतु कुछ लोगों को मसीही लोगों को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। और यीशु मसीह हमें इस दृष्टांत के द्वारा यहाँ पर सिखाया, और ये उसे सिखाया उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले। उसने जो गत्समनी और कलवरी कैलवरी क्रूस को देखते हुए उसने बोला, उसने उस समय को बोला जब वो क्रूस की मृत्यु उठाने पर था, उससे पहले उसने बोला। और यहाँ पर यीशु मसीह बहुत ही गंभीर रूप से हमें बताता है, पवित्र आत्मा हमसे कहता है हमें इस बात को सुनना है कि हाँ यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाहता है। Jesus used the picture of a Jewish wedding to help us understand what he's saying. Their marriage ceremony was different than ours. I will describe it to you. Marriages usually took place in the evening. The bridegroom and his friends came in a procession to the bride's house in the evening. The young women, who were the bride's friends, were assembled at the bride's home to wait for them. As soon as the lamps or torches of the bridegroom's party were seen in the distance, these young women lit their lamps and went forth to meet the bridegroom. The bridegroom and the bride's parties united together and returned to the bride's house. As soon as they entered the house, the door was shut. The marriage ceremony took place, and no one else was admitted. Jesus used this example to help us understand his words. और ये एक जो इब्रानी लोगों का जो शादी को यीशु मसीह ने यहाँ पर इस्तेमाल किया हमें समझाने के लिए, वो क्यों किया और क्यों इसका यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, आइए हम देखते हैं ताकि हम समझ पाए वो हमसे क्या कहना चाह रहा है। हम उसकी शादी की थोड़ी तैयारी के बारे में देखते हैं। जो इब्रानी लोगों का, जो इजरायली लोग हैं, यहूदी लोगों का जो शादी होता है वो थोड़ा हम लोगों से अलग होता है। वो लोग क्या करते हैं, वो शादी जो होता है यहूदियों का, वो शाम के समय में होता है जिसमें दूल्हे और दूल्हे के दोस्त दुल्हन के घर जो है जाते हैं शाम में। और जब वो जाते हैं तो जो वहां पर रात का समय होता है, शाम का समय होता है, तो वहां पर जितनी भी जवान दुल्हन की सहेलियां होती हैं, उनके जानने वाले होते हैं, वो सब वहां पर इकट्ठा होके उनका इंतजाम कर रहे होते हैं। और जैसे ही वहां पर दूल्हे और उसके बाकी सारे लोग वो आते हैं, वो टॉर्च और या एक लाइट जैसा कुछ लेकर आते हैं, तो वो दूर से उनको दिख जाता है और वो भी अपने लैंप को वहां पर जलाते हैं और दूल्हे से मिलते हैं। दोनों दूल्हा दुल्हन मिलते हैं और दुल्हन के घर के अंदर जाते हैं और वहां पर दरवाजे को बंद कर कर वहां पर जो भी शादी की जो भी रीति है वो होती है। और उसके बाद जब एक बार द्वार बंद हो जाता है तो वो अंदर कोई नहीं आता। तो यीशु मसीह ने इसका इस्तेमाल किया ताकि हम इस बात को समझ सकें। At the beginning, all 10 virgins appeared the same. I want to emphasize that they all appeared the same. All had been invited to the banquet. They all wanted to go. All 10 had gone out to wait for the bridegroom. All of them had their lamps with them. All virgins wanted to see the bridegroom. All were at the right place at the right time for the same right reason. All of them wanted to go to the wedding banquet. All of the virgins had some oil in their lamps at the beginning. All fell asleep, waiting for the bridegroom. All were awakened by the midnight cry. All 10 virgins got up to prepare their lamps. All appeared to be prepared for the bridegroom's coming. और यहाँ पर हम देखते हैं कि शुरुआत में 10 की 10 कुंवारियां एक जैसे से दिखते हैं। और मैं यहाँ पर आपको बताना मांगता हूँ, वो सब के सब उस जगह पर उनको बुलाया गया था क्योंकि वो सब के सब उधर जाना चाहते थे। 10 के 10 बाहर गए क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे दूल्हे का। और सबके पास जो है वो लैंप था,
सारी कुंवारियां जो है दूल्हे को देखना चाहती थी और सभी एक सही जगह पर थे, 10 के 10 सही समय पर थे, सही कारण से वहां थे। और हर एक जो है वो दूल्हे का जो शादी का जो जगह है उधर अंदर जाना चाहते थे। सबके पास शुरुआत में वो लैंप का तेल भी था और सबके सब सो भी गए उसका दूल्हे का इंतजार करते करते। फिर जब रात को आवाज हुई तो सब उठ भी गए और सबने अपने जो लैंप है उसको तैयार किया। सबने खुद को तैयार किया। तो सबके सब एक जैसे से दिख रहे थे शुरुआत में। So all 10 virgins appeared the same, but were they? If all 10 virgins were standing before us in no particular order, could we pick out the 5 wise virgins? Could we pick out the 5 foolish virgins? I don't think there's any way in advance that we could tell who were the wise or who were the foolish virgins. To the untrained eye, they would all look the same. और मैं यहाँ आपको बताना मांगता हूँ, यहाँ पर 10 की 10 कुंवारियां जो थी जब जब खड़ी थी, क्या उसमें से हम 5 मूर्ख और 5 समझदार चुन सकते थे उनको देख के? मुझे नहीं लगता हम चुन सकते थे, क्योंकि सभी के सब एक जैसे से थे, एक ही बात के लिए इकट्ठा थे, एक ही कारण से थे, एक ही समय पर थे और कोई नहीं बता सकता था उसमें से कौन मूर्ख है और कौन समझदार है। I want to say this, all 10 started out the same, saved, but all 10 did not end up the same. 5 ended up as wise virgins, 5 ended up as foolish virgins. Who were the wise virgins? Who were the foolish virgins? This is very important for us to know. और मैं आपको यहाँ बताना मांगता हूँ कि जब 10 कुंवारियों ने यहाँ पर शुरू किया, 10 के 10 यहाँ पर लिखा हुआ है, 10 कुंवारियों ने जब शुरू किया तो वो एक जैसे से दिख रहे थे और 10 के 10 एक जैसे थे। आखिर में जो है 5 मूर्ख हैं और 5 समझदार हैं। I believe that the 5 wise virgins were those that were born again and kept their faith in Jesus and what he did at the cross. The wise virgins had the wisdom only the Holy Spirit could give. The wise virgins knew how to deal with their sins. The wise virgins knew how to walk and please God. The wise virgins looked at life as a season of preparation for eternity. The wise virgins looked at life as a journey. The world is not their home, they're on their way to heaven. और यहाँ पर हम देख सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है जो 5 समझदार कुंवारियां थी उन्होंने अपने आप को तैयार किया अनंत काल के जीवन के लिए। उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसकी बाट को जोते रहे, अपने आप को तैयार किया उसके साथ जाने के लिए। उनको ये समझ में आया कि ये जो पृथ्वी का घर है वो सदा का घर नहीं है, हमारे लिए एक और घर है। वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, पवित्र आत्मा ने उनको बुद्धि और ज्ञान दिया था ये समझने के लिए। 5 ended up as foolish virgins. Who were these foolish virgins? Those who lived careless Christian lives. The foolish virgins had no spiritual knowledge and do not seek it. The 5 foolish virgins do not know Jesus or his cross. The 5 foolish virgins do not know their own hearts or their sin. The 5 foolish virgins may believe in hell, but they don't believe they'll go there. The foolish virgins expect wages without work. The foolish virgins expect gain or prosperity with no pain. The foolish virgins expect learning with no diligent study or reading of the word. The foolish virgins expect heaven with no faith in Jesus and what he did at the cross. The foolish virgins expect a crown without the cross. और जो 5 मूर्ख कुंवारियों के बारे में है, मुझे ऐसा लगता है वो जो मूर्ख इसलिए साबित हुई क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बाट को नहीं जोया और उनको अनंत काल का मृत्यु के बारे में तो पता है, नरक के बारे में तो पता है, लेकिन उनको लगता था हम जाएंगे नहीं। खुद को इस संसार से अलग नहीं किया, संसार में होते हुए, विश्वासी होते हुए संसार के अनुसार जीवन को बिताया, पाप में जीवन बिताया, पाप से खुद को अलग नहीं किया और खुद को तैयार नहीं किया अनंत काल के जीवन के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने के लिए खुद को तैयार नहीं किया। उन 5 मूर्ख कुंवारियों ने
हालेलुया, परमेश्वर के आत्मा के साथ जीवन को नहीं बिताया, वचनों को नहीं बिताया, यीशु मसीह को जाना लेकिन उसके क्रूस पर उस पर ध्यान नहीं लगाया, उसको मनन नहीं किया, विश्वास नहीं किया। The wise and foolish virgins are not separate. They're mixed together in every church. Every Sunday morning across the world, there's an invisible church and a visible church. The invisible church is the real church, the true church. This is the believers that have their faith in Jesus and what he did at the cross. The visible church is everyone that shows up on Sunday. It consists of regular attendees, the visitors and friends. The visible church contains the saved and the unsaved, the wise virgins and the foolish virgins. The visible church includes those that know the Lord, those that are seeking the Lord, those that are lukewarm, those that are religious hypocrites. Are you in the true church? Are you in the invisible church? That's the church you want to be in. Are you a wise virgin or are you a foolish virgin? You must be a wise virgin. और इस तरह से हम दोनों में, 5 मूर्ख में और 5 समझदार में, हम कुछ अंतर को देख सकते हैं। कुछ ने अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिताया, उनके संग-संग बिताया, अपने आप को तैयार किया, लेकिन कुछ ने अपने आप को तैयार नहीं किया, संसार के समान जीवन को बिताया, संसार के अनुसार वो चले, संसार के अनुसार उन्होंने काम किया। इस संसार के जो पाप हैं उनसे अलग नहीं हुए, विश्वासी तो हुए लेकिन उनसे अलग नहीं हुए, और यीशु मसीह को जानते तो थे लेकिन यीशु मसीह के अनुरूप उस जीवन को नहीं बिताया। तो हमें आज देखने की जरूरत है, क्या हम वाकई एक विश्वासी हैं या हम केवल नाम मात्र एक विश्वासी हैं और बाकी सारी बातें हमारे जीवन में चल रहा है, बाकी सारी बातें हमारे जीवन में है, पाप हमारे जीवन में है और तमाम बातें हमारे जीवन में। आज हमें ये देखने की जरूरत है, कलीसियाओं को ये देखने की जरूरत है। In Matthew 25 and verse 5, it says, while the bridegroom tarried. Remember, the bridegroom is Jesus. This refers to the second coming of Christ. Jesus is tarrying. Jesus is delaying his comeback. Why is the bridegroom tarrying? Why is the second coming of Christ being delayed? और यहाँ पर हमें सोचने की जरूरत है, क्यों ये जो यीशु मसीह का दूसरा आगमन है वो देरी हो रहा है, क्यों ये जो दूल्हा दुल्हन के मिलने के समय में देरी हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, और ये हमें वाकई में सोचने की जरूरत है। In 1 Timothy chapter 2, verses 3 and 4, it says, for this is good and acceptable in the sight of God, our Savior, who will have all men to be saved and come to the knowledge of the truth. God wants every person possible to be saved. God doesn't want one person to perish. This is why God is delaying the second coming of Christ. In 2 Peter chapter 3 and verse 9, it says, the Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. God is long suffering. Why? Because he doesn't want any to perish. This is why the bridegroom is tarrying. This is why God is delaying the second coming of Christ. और आइए हम एक वचन को देखते हैं। उससे पहले क्यों, जैसे कि मैंने कहा, क्यों जो परमेश्वर के आने के समय में देरी हो रही है, यीशु मसीह के दूसरे आगमन में देरी हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? हम सबके दिलों में ये बात आता होगा, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों जो दूल्हा दुल्हन के जो मिलने में टाल मटोल हो रही है, देरी हो रही है, वो क्यों हो रहा है? उसके लिए आइए देखते हैं, जरा एक वचन को हम पढ़ते हैं, पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय और उसका 3 और 4 वचन। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो, वह सत्य को भली भांति पहचान ले। और हम पढ़ेंगे, परमेश्वर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जो चाहता है हर एक व्यक्ति बचाया जाए, हर एक व्यक्ति जो है परमेश्वर के करीब आए, वो नहीं चाहता कोई भी नाश हो, इसलिए परमेश्वर के दूसरे आगमन में देरी है। और आइए एक और वचन पढ़ते हैं, दूसरा पतरस और उसका 3 अध्याय और उसका 9वां वचन। दूसरा पतरस में पढ़ेंगे, उसका 3 अध्याय का 9वां वचन में इस प्रकार से लिखा है, अपनी अपनी आप बाइबल खोल सकते हैं, और उसमें लिखा है, दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय और उसका 9वां वचन इस प्रकार से हमें बताता है कि तो प्रभु भक्तों की परीक्षा में से निकाल लेना,
और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा रखना में जानता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन का बहुत ही पक्का है और इसके लिए हम एक और वचन पढ़ेंगे। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। दूसरा पत्रस 3:9 में है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। हालेलुया। पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्यों परमेश्वर देर कर रहा, ताकि सबको मन फिराव का अवसर मिले। क्यों दुल्हा दुल्हन के मिलन में देरी हो रही है, ताकि सब परमेश्वर के नजदीक आए और कोई भी नाश ना हो, कोई भी नष्ट ना हो। और इसीलिए प्रभु के आगमन में देरी हो रहा है। The story of Noah building the ark is a picture of the long suffering of God. The Bible calls Noah a preacher of righteousness. It is thought that it took Noah 120 years to build the ark. For 120 years, Noah preached continually. He preached righteousness, telling the people to repent and turn from their sins. He warned them of the destruction to come, the flood. They saw Noah build the largest ark ever built at the time. They did not repent. They did not listen. They went on eating and drinking, planting and building, marrying and being given in marriage. The sun rose as usual. They thought of nothing but worldly things. But one day the rain came. It rained and rained and rained until water covered the earth. All perished except Noah and his family. In the case of Noah and the flood, God was long suffering. For 120 years, God had Noah preach to them. Noah warned them to repent or judgment would come. They did not repent, and the flood came. Your death is near. The second coming of Christ is near. Repent. Come to Jesus now. और ये आइए हम देखते हैं, जैसे नोहा ने जो नाव को बनाया उसमें करीब करीब 120 साल लगे। 120 साल उसको लगे। 120 साल तक उसने लोगों को प्रचार किया यीशु मसीह के बारे में। उसने प्रचार किया मन फिराने के बारे में। उसने प्रचार किया हालेलुया लोगों से मन फिराने के बारे में, प्रभु के पास आने के बारे में। 120 साल तक उसने लोगों को बोला, लेकिन किसी ने उसकी बात को नहीं सुना। वो लोग शादियां करते थे, खाते पीते थे, जो करना है वो करते थे। सूरज उसी तरह डूबता था। हमको लगता था कुछ नहीं होगा। संसारिक बातों के बारे में सोचते थे। ये जो नोहा था वो बोलता गया कि अपने मन को फिराओ, लेकिन उन्होंने नहीं माना। और एक दिन बारिश हुई और होते 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 इतनी हो गई कि सब प्राणी मर गए और पूरा पृथ्वी डूब गया। लेकिन नोहा और उस नूह और उसका परिवार जो है केवल बचाए गए। तो इसीलिए देखो परमेश्वर ने वहां पर भी 120 साल तक नूह को इस्तेमाल किया ताकि लोग बचाए जाए, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। Verse 5 says, they all slumbered and slept. They all slumbered and slept. Spiritually, the world is slumbering and sleeping. Spiritually, America is slumbering and sleeping. Spiritually, the church and most Christians are slumbering and sleeping. The second coming of Christ is near, and we're slumbering and sleeping. और यहाँ पर हम देखते हैं इसमें इस प्रकार से लिखा है, वो लोग सोते रहे और जो है अपने कामों में व्यस्त रहे। और हमारा संसार भी इसी तरीके से है। प्रभु का आगमन निकट है, लेकिन वो खुद को तैयार नहीं कर रहे हैं। अनेक बातों में खुद को व्यस्त रखा हुआ है। अमेरिका भी जो है व्यस्त है बेकार की बातों में, संसारिक बातों में। हम सब जो है प्रभु को छोड़ के बाकी सारी बातों में हमारा ध्यान रहे। The disciples asked Jesus what would be the signs of the second coming of Christ. This is what Jesus said in Matthew chapter 24, verses 6 through 8. And you shall hear of wars and rumors of wars. See that you be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. There shall be famines and pestilence and earthquakes in diverse places. For those things are the beginning of sorrows. Do you see what's happening in the world? The entire world is in turmoil. There's been war across the Middle East. There was an uprising in Hong Kong. They've had plagues of grasshoppers in Africa. Now we have the coronavirus all over the world. Have you ever seen anything like this? The streets of some of the biggest cities in the world were completely empty. People have shut themselves in their homes, afraid to come out. The financial markets all over the world have been shaken. Most of the world is in fear.
I believe these are signs of the second coming of Christ. Don't slumber and sleep. Wake up, get ready. The second coming of Christ is near. और चेलों ने वहां पर यीशु मसीह से पूछा कि उसके आने का, दोबारा आने का क्या चिन्ह होगा, जगत के अंत के क्या चिन्ह होंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 से लेके 8वें तक पढ़ते हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, कि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तो ये सारे जो चिन्ह है वो होंगे। और मैं विश्वास करता हूँ अंतिम समय में, क्योंकि जगह जगह हम सुन रहे हैं इतनी परेशानियां, अमेरिका में भी इतनी परेशानी है, और मिडिल ईस्ट में भी बहुत सारा परेशानियां हैं, और अब कोरोना वायरस का एक मार पूरे संसार भर में पड़ा हुआ है। कितने लोग मारे गए हैं, सारा सब कुछ, लोग अपने घरों में कैद है, आराम से आजादी के साथ घूम फिर नहीं सकते, और बहुत सारी बातें, बहुत लोगों की नौकरी चली गई, बहुत जगह अकाल पड़ रहा है, खाने के लिए नहीं है। और जो है अंतिम दिनों में मुझे ऐसा लगता है ये अंतिम दिनों के चिन्ह है। सारे संसार भर की अर्थव्यवस्था पूरी तरह खत्म होकर रह गई है। तो ये अंतिम दिनों के कुछ चिन्ह हैं। Why do people slumber and sleep concerning the second coming of Christ? The delay of Christ, as we went over, the second coming of Christ has been delayed because of the long suffering of God. With the delay, people have grown apathetic. They've stopped looking for the second coming of Christ. और परमेश्वर ने लोगों के विषय में बहुत धीरज को धर रखा है, ताकि कोई भी नाश ना हो। इसलिए चाहता है परमेश्वर, इसलिए देरी है ताकि कोई भी नाश ना हो, और इसीलिए परमेश्वर ने धीरज रखा हुआ है। लेकिन जो लोग हैं वो दूसरे आगमन को छोड़कर और ही बातों में व्यस्त हो गए हैं, वो उन्होंने को तैयार नहीं कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर धीरज रखा है ताकि कोई भी नाश ना हो, हम में से कोई भी नाश ना हो, परमेश्वर के करीब जाएं। परमेश्वर चाहता है हम सब उसके साथ वास करें, अनंत काल के जीवन में हम जाएं। Preachers treat dedication and consecration to God lightly. They preach that God wants to bless and prosper everybody. They don't preach the second coming of Christ. और बहुत सारे प्रचारक जो है इस समय प्रचार करते हैं, परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है, आपको पैसों में आशीष करना चाहता है, ये देता है, वो देता है, लेकिन कोई भी अंतिम दिनों की तैयारी के जीवन के बारे में नहीं बताता, कोई भी परमेश्वर के दूसरे आगमन के बारे में बात नहीं करना चाहता। Preachers have taken the grace of God further than God intended. They teach that once you're born again and ask God to forgive you, you never have to confess your sins again. They teach that grace covers all sin, even sins that have never been confessed, repented of, or stopped. If you're in sin, you're not concerned with the second coming of Christ. और बहुत सारे प्रचारक इस प्रकार से बोलते हैं कि जो तुमने पाप किया वो यीशु मसीह के द्वारा माफ किए गए हैं, लेकिन हमें पापों का अंगीकार करना बहुत जरूरी है। एक पाप का अंगीकार करना बहुत ही जरूरी है, लेकिन उनका प्रचार इस प्रकार से होता है जितने आपने पाप किए सब माफ कर दिए गए हैं, लेकिन उसके लिए हमें अंगीकार करना बहुत ही जरूरी है। Preachers have pushed the false doctrine of unconditional eternal security. This false doctrine states that once you're saved, there's no way you can lose your salvation. This means you can live like the devil. You can stay saved. No, no, no. This is a lie. This has caused millions to be lost. There are many who were once saved that have nothing left in their hearts for Christ and will die lost. If you're in sin, you're not concerned about the second coming of Christ. It is faith in Jesus and what he did at the cross that got us in. It is faith in Jesus and what he did at the cross that will keep us in. और बहुत सारे प्रचारक है वो इस प्रकार से कहते हैं कि अगर आप एक बार बचाए गए तो हमेशा के लिए बचाए गए, और ये सोचकर बहुत सारे लोग मसीह तो है लेकिन अपने जीवन को पाप में बिताते हैं, गलत बातों को करते हैं। और यदि आप पाप में है तो आप प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में नहीं सोचेंगे, नहीं जानेंगे। तो बहुत सारे प्रचारक ऐसे हैं वो इस प्रकार से प्रचार करते हैं
कि अगर आप एक बार बचाए गए तो हमेशा के लिए बचाए गए, पर ऐसा नहीं है। जब आप बचाए जाते हैं, आपको खुद को पाप से अलग करना होता है। वो पाप जो आपको वापस उस जगह लेकर जा सकता है, अनंत काल की मृत्यु की ओर लेकर जाता है, उससे मन फिराना होता है। प्रतिदिन हमें ये करना होता है। We are too busy. We don't have time for God. I mean, we have jobs, we have responsibilities, we have families. We don't have time for God, but we have time to watch TV and play video games. We have time to spend on our social networks. We have time for sports, hobbies, shopping, and a million other things. Sometimes we keep ourselves so busy, we have no time for God, and we're not concerned about the second coming of Christ. Each one of us has time for God. We must make God a priority. We must give time to God. और मुझे लगता है कि मैं इस प्रकार से कहना चाहूँगा कि हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है। मेरा मतलब हमारे पास नौकरी है, बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं, परिवार है, हमारे पास समय नहीं है परमेश्वर के लिए, लेकिन हमारे पास समय है टीवी देखने के लिए, वीडियो गेम खेलने के लिए और जो अदर सोशल नेटवर्क्स है, उस पे समय बिताने के लिए और हमारे पास समय है खेलने के लिए, अपना जो इच्छा करता है उस चीज़ को करने के लिए और खरीदारी करने के लिए, घूमने-फिरने के लिए। हम अपने आप को कई बार खुद से व्यस्त रखते हैं, पर हमारे पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है क्योंकि हम उसके दूसरे आगमन के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं है और हमें हर एक को परमेश्वर के लिए समय निकालना है। हमें परमेश्वर को सबसे प्रथम स्थान देना है, अपना समय देना है। How were the five virgins foolish? They were not ready for the coming of the bridegroom. Their lamps were not trimmed. They ran out of oil. The trimming of lamps involves raising the wick and cutting off the charred portion of the wick and replenishing the wick with oil. This was done twice a day in the temples of old. If the wick was not trimmed and fresh oil supplied, the lamp would give off more smoke than light, and eventually the flame would go out. Although all virgins rose to trim their lamps, there's evidence that the five foolish virgins had not been trimming their wicks and carried no extra oil. The five foolish virgins were not ready for the bridegroom to come. The five foolish virgins were not ready for the second coming of Christ. Are you ready? और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है 5 जो मूर्ख जो कुँवारियाँ थी, वो जो है परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने अपने जो जो उनका लैंप था, उनके पास प्रकाश का दिया था, उन्होंने उसकी काट-छाँट नहीं करी और वो जो है तेल से पूरी तरह खाली हो गई और काट-छाँट करना बहुत ज़रूरी है कि जब वो जलते-जलते वो जो उसकी बत्ती होती है वो खराब होने लगती है तो उसको काट-छाँट करना ज़रूरी है, नहीं तो वो क्या होता है, जलने से ज़्यादा धुआँ देता है और आखिर में वो बंद हो जाता है। तो जो है सबके पास जो लैंप था लेकिन 5 मूर्खों ने 5 मूर्ख कुँवारियों ने ध्यान नहीं दिया, वो परमेश्वर के आगमन के लिए उतना चिंतित नहीं थी, उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया और इस प्रकार से जो है उनके पास और तेल भी नहीं था, उन्होंने एक्स्ट्रा जो अधिक मात्रा में वो तेल को नहीं लिया। As Christians, Jesus wants our lights to burn brightly. In Matthew chapter 5 and verse 14, it says, "You are the light of the world." In Matthew 5:16, it says, "Let your light shine before men." We are to reflect the light of Christ. We must trim our lamps. This means we must not live our lives as sloppy Christians. We must seek God with all our hearts. We must be diligent in reading the Bible. We must be fervent in our prayer life, or our lamps will go out. We need to trim our lamps. We constantly need more oil. This is the oil of the Holy Spirit. When we're born again, we receive the oil of this Holy Spirit, but the oil we initially receive is not enough. We need more oil. We need more oil. We need more oil. We need a constant infilling of the oil of the Holy Spirit. और यहाँ पर हम देखते हैं कि मसीह होने के नाते हमें उसकी बाट को जोहना है, बाट को जो कर तैयार होना है, क्या हम तैयार हैं? और एक मसीह होने के नाते हम जो परमेश्वर के जो है दिया है, ज्योति है। आइए देखें एक वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 14वां वचन इस प्रकार से कहता है, तुम जगत की ज्योति हो।
और 5वां अध्याय और उसका 16वां वचन में इस प्रकार से लिखा है कि उसी प्रकार तुम्हारा उज्याले मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। तो हमें जो है हमारे द्वारा यीशु मसीह जो है जगत में दिखना चाहिए, मसीह की ज्योति दिखनी चाहिए। हमें अपने लैंप की काट छांट करनी है, मैले मसीही की तरह हमें जीवन नहीं बिताना, हमें परमेश्वर को अपने पूरे हृदय से ढूंढना है और वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करना है और हमारे जो रोशनी है यीशु मसीह की हमारे अंदर उस जगत में हमें रखना है और पवित्र आत्मा रूपी तेल को से खुद को भरना है। और हमें हर दिन वो तेल चाहिए, एक दिन नहीं पर हर दिन प्रतिदिन हमें उस तेल से भरना है। How do we get more oil? We keep our faith in Jesus and what he did at the cross. The Holy Spirit does not work outside the cross. In Romans 8, verse 2, it says, "For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death." These are the two greatest laws in the universe. There's only one law that is greater than the law of sin and death. That is the law of the Spirit of life in Christ Jesus. The law of sin and death is the law that we're under if we're not saved. We sin and sin and sin until we die and go to hell. The law of the Spirit of life in Christ Jesus is the law that we're under when we're saved. The Spirit of life is the Holy Spirit. Notice it says in Christ Jesus. This is very important. In Christ Jesus. This means that the Holy Spirit does not work outside the cross. To get more oil, to have the Holy Spirit work in our life, we must always keep our faith in Jesus and what he did at the cross. We must always keep our faith in the cross. We must desire the baptism of the Holy Spirit. We must not hinder the work of the Holy Spirit in our lives. We want everything that the Holy Spirit can provide. और हम किस प्रकार से अधिक मात्रा में तेल को प्राप्त कर सकते हैं? हम अपना विश्वास यीशु मसीह पर रखकर जो उसने क्रूस पर किया उस पर रखकर, और पवित्र आत्मा क्रूस के बाहर या पवित्र आत्मा यीशु मसीह से अलग काम नहीं करता, मिलकर काम करता है। ये देखिए रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और 2 वचन इस प्रकार से कहता है कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। यहाँ पर दो बड़े नियमों को, व्यवस्था को हम देखते हैं। एक व्यवस्था है हालेलुया मृत्यु की व्यवस्था और दूसरी जीवन की आत्मा की व्यवस्था। हम पाप करते जाते तब तक जब तक हम नरक में नहीं पहुंच जाते, लेकिन परमेश्वर की आत्मा का जो व्यवस्था है उसके उसके द्वारा हम बचाए गए, हमने पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन को पाया। और यहाँ पर लिखा है मसीह यीशु, अब जो मसीह यीशु में यहाँ पर लिखा है, और ये बहुत जरूरी है मसीह यीशु में होना। और पवित्र आत्मा का मतलब, पवित्र आत्मा क्रूस के साथ कार्य करता है, क्रूस के बिना नहीं है। यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया वो यीशु मसीह के साथ मिलकर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। हमें इसीलिए हमारा विश्वास यीशु मसीह पर और जो कुछ उसने क्रूस पर किया उस पर हमें विश्वास रखना है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन कार्य करे। हालेलुया। और हमें परमेश्वर की ओर देखना है, हमें कभी भी पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है, हमेशा पवित्र आत्मा से भरना है, हर दिन भरना है, हमें उसके कार्य को नहीं रोकना। और हमें चाहिए पवित्र आत्मा हमें हर चीज को भरपूरी से दे। The five foolish virgins said to the wise, "Give us your oil." We find this in Matthew 25 and verse 8. And the foolish said unto the wise, "Give us your oil, or for our lamps have gone out." You cannot borrow another person's oil. Your pastor cannot give you the oil that you need. The most famous Christian you know cannot give you the oil that you need. Your godly father or mother cannot give you the oil that you need. You must get your own oil through studying the word, through praying, through keeping your faith in Jesus and what he did at the cross. You must get your own oil from the Holy Spirit, or your lamp will go out. और यहाँ पर हम देखते हैं जो 5 मूर्ख हैं उन्होंने 5 समझदार से कहा कि तुम हमें अपना तेल दो। आइए देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 के 8 में देखा, और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारे मशाले बुझी जा रही है। और मैं आपको बताना मांगता हूँ जो तेल है वो पवित्र आत्मा को दिखाता है। आप किसी और से तेल को उधार नहीं ले सकते, आपका पास्टर आपको वो तेल नहीं दे सकता। जो बहुत
जाना माना जाना पहचाना एक मसीह व्यक्ति है, वो आपको तेल नहीं दे सकता। आपके आत्मिक माता पिता वो तेल नहीं दे सकते। केवल पवित्र आत्मा के द्वारा आप उस तेल को पा सकते हैं। वचन को पढ़कर, प्रार्थना को करके केवल आप उस पवित्र आत्मा में भर कर कार्य कर सकते हैं। Then came a midnight cry. The bridegroom came. We find this in Matthew 25 and verse 6. And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh. This is the second coming of Christ. It will come suddenly, in an instant. It will break on the world all at once, in an hour that no man thinks, as a thief in the night. When the bridegroom comes, when Jesus comes, the wise virgins will go into the banquet, the wedding with Jesus. और यहाँ पर हम देखते हैं इसमें इस प्रकार से लिखा है, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है और उससे भेंट करने के लिए चलो। और ऐसे ही हमारे परमेश्वर का आने का समय होगा, जब कोई भी नहीं सोचता होगा, तब ऐसे समय में परमेश्वर आएंगे। और वहां पर लोग तैयार नहीं थे, पांच कुंवारियां तैयार नहीं थी, 5 कुंवारियां तैयार थी। उसी प्रकार कुछ लोग तैयार होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो हमें अपने आप को तैयार करना है परमेश्वर के आगमन के लिए, उससे मिलने के लिए, उसके साथ उस विवाह में शामिल होने के लिए। The door was shut. In Matthew 25 and verse 10, it says, The bridegroom came, and they who were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. The door was shut. The door was shut. The door was shut. I believe this is the strongest wording that the Holy Spirit can give. And the door was shut. The door is open now, but the door will be shut. This means that the door will be closed and never open again. If you're a wise virgin, you will be safely inside the door. If you're a foolish virgin, if you're not ready, if you're not prepared, you'll be outside the door, and the door will be closed forever. और यहाँ पर हम देखते हैं 10वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, जब वो मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा पहुंचा, और जो तैयार थी वो उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। और इसी प्रकार जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, उसमें से जो तैयार होंगे वो उसके साथ विवाह के घर में चले जाएंगे और द्वार को बंद कर दिया जाएगा। तब द्वार बंद था, लेकिन अभी अभी द्वार खुला हुआ है। लेकिन आने वाले समय में यीशु मसीह के आगमन के बाद वो द्वार बंद हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास मौका नहीं है। तो अभी खुद को तैयार करें, ताकि हम परमेश्वर के साथ वो विवाह घर में जाएं और परमेश्वर के साथ अनंत काल के जीवन को बिताएं। उसके दूसरे आगमन में यीशु मसीह के साथ प्रवेश कर सके, क्योंकि द्वार बंद होने को है। Just think of that moment. You're outside the door, and the door is shut to you forever. You'll cry out, Let me in, let me in, let me in. But the door will not open. You'll knock and knock and knock until you wear yourself out, but the door will not open. When the bridegroom comes, when Jesus comes, the scales will fall from your eyes, and you will see the value of your soul, which you neglected. You'll look into the penetrating eyes of Jesus and realize you were wrong. You'll realize that all those godly Christians that tried to share Jesus with you, that you rejected and mocked, they were wise and you were the fool. You'll realize that you had many opportunities to accept Christ, but you let them slip away, and you'll realize that you are without Christ, and you'll be in hell forever and ever. और उस समय के बारे में जरा सोच कर देखिए कि जब द्वार बंद हो जाएगा, परमेश्वर के आगमन के साथ जब हम नहीं प्रवेश कर पाएंगे, हम बाहर से कितना भी द्वार को खटखटाएं, कितना भी उधर खड़े होकर चिल्लाएं, लेकिन वो द्वार नहीं खुलेगा, क्योंकि हमने जीवन को नहीं बिताया परमेश्वर के साथ, वचनों में, प्रार्थनाओं में। हमने मसीह तो हम बने, लेकिन पाप से हम अलग नहीं हुए, और जो है हमने परमेश्वर के साथ को नहीं महत्वपूर्ण जाना, हमने संसारिक बातों में जीवन को बिताया। और अब जब द्वार बंद हो गया, तो वहां पर हम चिल्लाएंगे, चीखेंगे, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो एक आखिरी समय में, एक न्याय के बाद का एक समय है, और हमें अनंत काल की मृत्यु में जाना ही पड़ेगा। तो अभी भी मौका है। जो लोग हमें बताने के लिए आते हैं, चिताते हैं, हम उन सारी बातों पर ध्यान दे सकते हैं। नहीं तो हम वहां पर उस समय पे सोचेंगे कि काश हमने सोचा होता, काश हमने ध्यान दिया होता, काश हमने जो हमें बताने के लिए आए, हमने उनको सुना होता, काश। लेकिन तब कुछ भी नहीं हो पाएगा। The good news is the door is still open. You can accept Jesus this moment, right here, right now. Don't say, I'll repent later. If you harden your heart now, you may never come at all. At your death or the second coming of Christ, which is near,
the door will be closed to you forever. और अच्छी बात ये है कि द्वार अभी भी खुला है आपके लिए, आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं। आज अपने पापों से मन फिराव करें, प्रत्येक बातों के लिए जो कुछ आपके जीवन में रहा उसके लिए क्षमा को मांग के परमेश्वर के करीब आए, अपने जीवन को परिवर्तन करें और परमेश्वर के साथ जीवन को बिताएं, ताकि अनंत काल के उस जीवन में जा सके, उसके साथ विवाह घर में प्रवेश कर सके। जब द्वार बंद हो जाए तो हम अंदर की तरफ हों, उसके साथ हों। Many of you are in fear right now because of the coronavirus all over the world. Many of you are in fear because of everything that you see going on in the world, wars and rumors of wars. But there's something other that you should be more fearful of, the second coming of Christ. And it's time to repent right now. It's time to get right with Jesus now. और यदि आप डर में हैं कि कोरोना चारों तरफ फैल रहा है, कहीं मुझे ना हो गया हो तो, या युद्ध के बारे में या देश देश की नीति को जब हम सुनते हैं तो डर में, लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूँ उससे भी महत्वपूर्ण बात के लिए आपको डरना चाहिए, वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में। उसमें उतना ही गंभीर होना चाहिए और सोचना चाहिए उसके बारे में। If you'd like to accept Jesus as your Lord and Savior, please pray this prayer after me. और यदि आप यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं, प्रार्थना मेरे पीछे आप कर सकते हैं। Father, I come to you in the precious name of Jesus. और पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से आपके पास आता हूँ। And Jesus, I ask you to forgive my sins, and I invite you into my life as my Lord and Savior. और यीशु मसीह, मैं आपसे अपने पापों की क्षमा को मांगता हूँ और आपको अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ। I do not put my faith in anything that I do. I put my faith in you, Jesus, and what you did at the cross. और यीशु मसीह, मैं उस पर विश्वास नहीं जो मैं करता हूँ, परंतु उस पर विश्वास करता हूँ जो आपने क्रूस पर किया। मैं उस पर, उन तमाम बातों पर विश्वास करता हूँ। I ask you for the gift of eternal life. I receive it, and I thank you for it. और मैं उस अनंत काल के जीवन को मांगता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ मैंने उसको पाया और इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। Jesus, please be the Lord of my life and deliver me from all sin. प्रभु, आप मेरे जीवन के, यीशु मसीह आप मेरे जीवन के प्रभु हो जाए, मुझे सारे पापों से, तमाम बातों से छुटकारा दे। Amen. आमीन। And now I'm going to pray with you. And then after I get